पता नहीं मेरा पुराना पेज कहाँ गया। मेरी आवाज आ रही है? कैन यू ऑल हियर मी? ये जो वीडियो कट गया ना, ये बहुत ही गलत जगह पे कट गया। हम बहुत ही अच्छी जगह पहुंच गए थे, लेकिन हमें वापस वहां जाना पड़ेगा। मैंने कहा डिफरेंशियल जो है of a function of two variables, suppose f is a function from R2 to R2, then differential of f can be written as del f by del x in the matrix form. Can you all hear me? Yes, sir. Very good. So I can write it as a matrix multiplication, dx dy. मेरे कहने का मतलब है if f is a differentiable function of any variables, so sorry अगर ये function है from R2 to R2, R2 to R, then differential of f can be written as a मतलब you know that matrix multiplication partial derivatives, when you evaluate them, we evaluate them at a point. We can think of it as a linear function applied to the increment. Applied to the increment. इसी तरह से exactly हमें ऐसा ही मिला. Differential of n, as we should have expected, is a map when evaluated at a point, is a map that is a linear map applied to the increments du dv, which was 1 by h square, जो हमें मिलता था रिजल्ट में. What was that? fm minus gl, चलो मैं फिर से लिखता हूँ, du plus fn minus gm dv, of course दूसरा कंपोनेंट जो इसका होगा वो है fl minus en times du प्लस, आई होप वहां आ रहा है, प्लस ये दूसरा कंपोनेंट है इसका, यहाँ कॉमा है, fm minus en dv, this. So this is just one component and this is another component. So what I am getting, remember that n is a function from like R2 to R2, मतलब two-dimensional thing. You have got a surface which has got two something, and then of course, okay, तो इसका जो map होगा, so it would be from, इसका जो dn would be a map from R2 to R2, which you can see. Not R2 to R2, मतलब in terms, not the plane that we take xy plane. It is my parameter plane. It is uv को ये पहुंचा देता है, rather du dv, जो मेरे दो different variables हैं, उनको पहुंचा देता है किधर, ये एक को बना देता है ये, दूसरे को ये. But we know that any differential, any linear map from R2 to R2 can be written as a matrix, 2 by 2 matrix. So this can be written also as a 2 by 2 matrix like this. I can write it in the matrix form. Okay, कहाँ गया? इसको रब करता हूँ मैं, यहाँ पे confusion हो गया. It can be written in the matrix form like this: fm minus gl, then fl minus en. Here it would be fn minus gm, then fm minus en applied to the increment du dv. So I can think of this differential of the Gauss map as multiplication by this matrix, because multiplication by matrix is, it is exactly the, once you choose a basis, then any linear map from R2 to R would be a matrix, 2 by 2 matrix. So I got a 2 by 2 matrix. These are numbers E, F, G, and evaluated at some point U, V. Then you apply on the increment, you will get. This is how we should be able to realize differential of a map from R2 to R2
in terms of a matrix. Now this encodes, this matrix encodes all the information about our principal curvatures. Now we can do that in another way. पहले हम कर चुके हैं एक तरीके से, लेकिन ये गाउस का तरीका भी कोई कम अच्छा नहीं. So basically what I mean here is that जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो you will get this. और इसको सिंपली मतलब और भी एक तरीका है. I can also write it as a1 by h square. Sorry, I can also write it as minus, which is very nice way of writing it. I can write this as a product of two matrices, E F F G inverse of this matrix multiplied by L M M N. Now this is where we got this first and second fundamental magnitudes. So we can write it in a very pure form. How the differential of n applies, and differential of n जो हमें उस पे एरिया देगा वो कर्वेचर होगा, उस गाउसियन कर्वेचर I mean. और ये जो मैट्रिक्स है ये इंफॉर्मेशन सारी कंटेन करती है हमारी क्या बोलते हैं प्रिंसिपल कर्वेचर्स की. So having written this as dn evaluated at uv, and then of course it is a linear operator on the increment applying. Look, this is the action of this differential, which is a linear map because the function is differentiable. I hope you can just get a hang of it. Now we know that sum of eigenvalues, अगर मैं अब ये matrix लूं, कौन सी है मेरी matrix? Let me write it again. 1 by h square ये मेरा matrix है. What was that? Fm minus gl, Fn minus gm, then I have here Fl minus em, Fm minus en. ये जो मेरा इट्स मैट्रिक्स, क्योंकि ये नंबर है, इसको हम अंदर चाहे तो हम इसको अंदर लेके h स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड करें, या चूंकि कॉमन है तो बाहर ही रखें. सो ये मेरा टूल है. नाउ सम ऑफ आइगन वैल्यूज जो है, अब हम कुछ देखना चाहेंगे इससे हमें क्या मिलेगा. अगर ये इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज हम निकालें, आइगन वैल्यूज पता है ना, इफ यू हैव अ मैट्रिक्स A, then you solve for this equation, this matrix equation equal to 0, not determinant this equal to 0. जो lambda का values मिलेंगे, they are eigen values of A. और sum of eigen values होता है हमेशा trace of the matrix. Trace होता है sum of diagonal elements. और ये भी होता है product of eigen values होता है determinant. Good. So product of eigenvalues होता है determinant. So अगर मान लो alpha 1 alpha 2 इसके eigenvalues हैं, then alpha 1 plus alpha 2 should be equal to 1 by h square trace fm minus gl plus fm minus en. So that would be equal to 1 by h square into twice fm minus gl minus en, which can be written as minus 1 by h square into, let me write it, fn minus twice fm plus gl. माइनस को मैंने बाहर निकाला, which is nothing but मतलब ka plus kb. अगर तुम ka plus kb का देखोगे ना, जो हमने प्रिंसिपल कर्वेचर्स का, so sum of eigenvalues is nothing but the negative of the principal curvature, and product of the eigenvalues क्या होगा, alpha 1 into alpha 2, it should be product of the eigenvalues would be the determinant, है ना. Determinant is this into this minus this into this, जो कि तुम्हें पता है. 1 by h square को अगेन हम बाहर ही रखेंगे. एक्चुअली होगा, क्योंकि मैं डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं, तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, डिटर्मिनेंट मुझे मतलब अगर मैं ये हटा दूं, यहाँ h स्क्वायर है, यहाँ h स्क्वायर है, यहाँ h स्क्वायर है, तुम्हें पता है डिटर्मिनेंट्स में रो से कॉमन एलिमेंट निकलता है या कॉलम से.
तो यहाँ इस रो से 1/h² निकलेगा जब मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, सो बट दिस वुड बी 1/h⁴ इनटू fm minus gl into fm minus en minus fl minus en multiplied by fn minus gl। और अगर तुम इसको इवेलुएट करोगे, मैं चाहता हूं तुम करो, उतना तुम कर ही सकते हो मल्टीप्लाई वगैरह। So you will get alpha 1 into alpha 2 is nothing but m square minus ln divided by g square minus e, मैं क्या लिखा, m square ln, so it should be f square minus eg, which is nothing but minus ka into minus kb, which is the same thing as ka into kb by the way, लेकिन चूंकि अब हमने वहां पे लिखा था माइनस, तो यहाँ पर भी। So what we are seeing that जो इस मैट्रिक्स जो हमने बनाई थी, इसके आइगन वैल्यूज का सम जो है, इट इज नेगेटिव ऑफ द सम ऑफ द प्रिंसिपल कर्वेचर्स, और आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है, दैट इज बेसिकली द गाउसियन कर्वेचर और प्रोडक्ट ऑफ द नेगेटिव्स ऑफ द। सो इसको ओवरकम करने के लिए हम कभी कभी लेते हैं एसपी, विच इज एस एट यू वी एज अ फंक्शनल, उसका मतलब होता है माइनस डी एन एट यू वी। हम ये वाला ऑपरेटर लेते हैं, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो सब, फिर जो इसके आइगन वैल्यूज होंगे इस शेप ऑपरेटर के, दे आर एग्जैक्टली द प्रिंसिपल कर्वेचर्स, रादर उनका सम और जो प्रोडक्ट है वो सेम होगा, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर्स। तो आई होप तुम इसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब करोगे, राइट, कि क्या होता है गाउस मैप। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा है इन एनी केस। अब दूसरी बात यह है, अब हम इस गाउस मैप की प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं। सो n कैन बी थॉट ऑफ नाउ एज अ मैप, एंड मैंने कहा था s to s2। हाँ, मैं एक चीज करना भूल गया, क्योंकि ये जो dnp है ना, इट इज बेसिकली डिफाइंड एट अ पॉइंट, जिसको मैंने uv लिखा था, विच मीन जब मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं, इसका जो एक्चुअली जहां अपना काम करता है, दैट इज बेसिकली इट टेक्स इट्स इंक्रीमेंट। Basically I should talk about tangent plane of S2, tangent plane of S2, tangent plane of S2, मतलब it's a map between the tangent spaces, because जब मैंने वो du dv लिया था, बेसिकली इट वाज अ वेक्टर इन द टेंजेंट प्लेन, फिर जो मैंने वहां कॉमा लगा दिया था, मैंने कहा था हमने मान लिया आर यू आर बी बेसिस है, बट बेसिक आइडियाज में कोई फर्क नहीं, यू जस्ट हैव टू थिंक, ये जो मेरा डी यू डी बी है, या जो मेरा जो भी काम हो रहा है, इट इज बेसिकली इवेल्युएटेड एट अ पॉइंट ऑन अ सरफेस, और जो मेरा इंक्रीमेंट है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू अराउंड दैट पॉइंट, उसके जो आसपास मैंने डायरेक्शंस ली हैं, मतलब सब कुछ, मतलब it is happening at a point on the surface। इसके बाद हमें करना था that Gaussian map is self-adjoint। Gaussian map is self-adjoint। Or should I leave it for tomorrow? Let me see ये कितना है। ओके, चलो ये कर सकते हैं Gaussian map is self-adjoint। Gaussian map is self-adjoint का पहले मैं बता दूं, self-adjoint हम लेते हैं, let me
ओके, वी शो दैट सेल्फ एडजॉइंट का मतलब है एज एन ऑपरेटर। जैसे अगर मैं लूं कोई ऑपरेटर dn, now is a map we can talk about, जैसे मैंने कहा था ना लास्ट टाइम r2 to r2, इसके इनपुट्स हैं a pair of real numbers, a pair of real numbers। अब सिर्फ ये है कि मतलब तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मतलब बेसिकली हम लिखते हैं टेंजेंट स्पेस ऑफ दैट, यानी हमें शुरुआत जो अपने रियल नंबर्स की करनी है, इट इज अराउंड अ पॉइंट ऑन द सरफेस, बट दैट्स नॉट हियर इंपॉर्टेंट। कोई भी मैप जो होगा फ्रॉम अ पेयर ऑफ रियल नंबर्स टू पेयर ऑफ रियल नंबर्स, व्हाट यू हैव, सो तुम्हें तुम्हारा एक डोमेन होगा इसका, सपोज w1, w1 होगा से सपोज x1 y1, राइट। ऑफ कोर्स इसी तरह से फिर dw1 जो होगा वो भी होगा, सॉरी, dn अप्लाइड टू दिस w1 जो होगा वो भी होगा कोई पेयर ऑफ रियल नंबर्स से z1, क्या मैं लिखूं, चलो मैं इसको नाम देता हूं alpha1 beta1। सो मतलब इट्स अ पेयर ऑफ रियल नंबर्स, ये भी पेयर ऑफ रियल नंबर्स है, तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, यानी मैं इसका डॉट प्रोडक्ट ले सकता हूं। So we say a linear map is self-adjoint from R2 to R2 अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूं dn at p over w1, उसका डॉट प्रोडक्ट लूं with some w2, it would be equal to w1 dotted with dnp evaluated at w2। अगर ये डॉट प्रोडक्ट दोनों बराबर हों, we say this dn जो है, ये जो मैप है dnp, it could be t of w1, मतलब in general t of w1 का डॉट प्रोडक्ट with w2 अगर है बराबर w1 into t of w2 for a linear map, we say t is self adjoint। Okay, so just to make our things a little clearer, तो इसको हम यूजुअली बजाय डॉट प्रोडक्ट को ऐसे लिख देंगे, जो तुम आगे देखोगे हम कभी कभी उसको ऐसे लिखते हैं। तो अगर मुझे यहां दिखाना है सेल्फ एडजॉइंट, तो मैं इस टर्मिनोलॉजी में इसको लिखूंगा, बिकॉज इट्स अ बेटर टर्मिनोलॉजी, बेटर वे ऑफ राइटिंग ए डॉट प्रोडक्ट। सो मुझे फिर दिखाना है, अगर मुझे दिखाना है dn p इज सेल्फ एडजॉइंट, I have to show that dnp applied to w1 and we take the dot product with w2 is equal to w1 taking dot product with dnp at w2 for all w1 w2 in the domain, जहां पर भी है, और बेसिकली हमारा तो है it belongs to tangent space of the surface। Okay, now what we do is that w1 w2 w1 w2 जो है, they basically can be written as a linear combination of r sub u and r sub v। और ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसकी एक प्रॉपर्टी है, दैट इज लीनियरिटी। डॉट प्रोडक्ट की हमेशा एक प्रॉपर्टी है जो तुम खुद भी वेरीफाई कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब है a अगर मैं फिक्स करूं इनटू b प्लस c is equal to a dot b, you can check plus into a dot c। This is the property of dot product। not only that it could be a, मतलब अगर मैं इसको फिक्स करूं, सपोज आई राइट a प्लस b, मतलब इट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर वेक्टर एडिशन। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली प्रॉपर्टी जो है, एंड देन यू हैव व्हाट वी कॉल स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो कि यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ सब नंबर्स हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज because of linearity of the dot product, because of linearity of the dot product, because of linearity of the dot product,
because then W1 can be written as some alpha R sub U plus beta R sub V, and W2 can also be written as let me say gamma R sub U plus delta R sub V, and using the fact that D and P is linear means अगर मैं इसको अप्लाई करूं, लीनियर का पता है ना क्या होगा, DNP is linear means अगर मैं यहाँ अप्लाई करूंगा, so you will get DNP of this thing plus DNP of this thing, which would be alpha times DNP of R sub U plus beta times, I hope यहाँ थोड़ा जंबल अप हो गया, बट अगर तुम नोट्स देखोगे तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। मेरे कहने का मतलब है एक तो DNP लीनियर है और डॉट प्रोडक्ट बाई लीनियर है, डॉट प्रोडक्ट इज बाई लीनियर। ऑफ कोर्स बाई लीनियर तभी है जब ये सारा रियल हो, सारे नंबर्स रियल, अगर कॉम्प्लेक्स होंगे तो बाई लीनियर नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, DNP is linear and dot product is bilinear, therefore it is sufficient, therefore it is sufficient to prove, it is sufficient to prove that, अगर हम इतना प्रूव करें using then the linearity and bilinearity of the dot product, it is sufficient to prove that D and P, अगर मैं इतना ही दिखा दूं, R sub U, R sub V is equal to R sub U into DN, एरोज लगाने हैं P, अगर मैं ये दिखा दूं ना और फिर मैं यूज करूं लीनियरिटी ऑफ D and P, मतलब इट वुड प्रूव द सेल्फ एडजॉइंट। मतलब अगर मैं बेसिस वेक्टर्स पे कोई चीज दिखाऊं सेल्फ एडजॉइंट है, तो इसका मतलब हर एक वेक्टर जो उस टेंजेंट प्लेन में है, विच इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ R1 और RV, तो उनके लिए भी ये ट्रू होगा। और मुझे लगता है वो हम कल करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग कहीं पे जो हम जा रहे थे ऐसे ही थोड़ा तेजी से, एनी क्वेश्चंस? अब क्या करें, ऐसे ही बढ़ना पड़ रहा है, वरना थोड़ा सा मैं इसको, अगर मेरे पास वो बोर्ड होता तो मैं दिखाता कि एक्चुअली कि मतलब वी कैन जस्ट टेक द स्केलर्स आउट एंड अप्लाई इट ऑन द एडिशन, तो फिर वो अगर हम इस पे दिखाते हैं सेल्फ एडजॉइंट तो वो प्रूव हो जाएगा फॉर ऑल द वेक्टर्स इन द टेंजेंट प्लेन। हाँ मुझे बता दो, किसी को कुछ पूछना है? सर ये हमने कल पढ़ा था इनर, इसमें इनर प्रोडक्ट स्पेस में। इनर प्रोडक्ट स्पेस में क्या पढ़ा था? सर यही जो एडजॉइंट ऑपरेटर होता है वो लीनियर होता है। हाँ सर ये एडजॉइंट ऑपरेटर, एडजॉइंट ऑपरेटर, चलो पता नहीं एग्जिस्टेंस हमने पढ़ी थी। अच्छा वो कुछ और होगा मुझे लगता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सेल्फ एडजॉइंट होना, एक तो हुआ एडजॉइंट ऑपरेटर, दूसरा हुआ खुद का एडजॉइंट होना, ठीक है ना? एंड एक हुआ एडजॉइंट किसी का, दूसरा हुआ वो अपने एडजॉइंट के बराबर हो। उसके लिए फॉर इफ आई टेक द लीनियर स्पेस R2 एंड R2 या रियल स्पेस, तो इट इज सफिशिएंट टू शो दैट उसका जो एक्शन है उस ऑपरेटर का, अगर मैं पहले उसको एक्ट करूं फिर किसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लूं और फिर रिवर्स करूं ऑपरेशन, मतलब इस पे पहले उसको एक्ट करूं फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लूं, तो वो सेम होगा, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर वही होता है। तो वी वांट टू शो दैट ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है दिस इज सेल्फ एडजॉइंट, ऑल्दो ये उतना कुछ ज्यादा है नहीं डिफिकल्ट। बट और कोई क्वेश्चन एनीबॉडी? अच्छा रुकैया, तुमने वो लिया स्क्रीनशॉट, कितने थे स्टूडेंट्स? सर इरफान आ गया है। अच्छा वो भी आ गया, तो तुम उसका, अच्छा इरफान को क्या मुझे, हाँ तो इरफान तुम कहाँ होते हो, तुम क्या एब्सेंट रहते हो, ये क्या मतलब है? हेलो इरफान, सीआर कहाँ है? 26 पार्टिसिपेंट्स हैं सर मैंने ले लिया
स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। स्क्रीनशॉट, गुड। तो वो भेज देना मुझे, क्योंकि अटेंडेंस। हाँ, तो मैं कह रहा था इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है जो मैंने अभी तक बोला? तो ये हम कल करेंगे, हम ये दिखा देंगे कि फॉर बेसिस वेक्टर्स इट इज ट्रू, देयरफॉर अगर बेसिस के लिए ट्रू है तो हर एक वेक्टर जो उससे जनरेट होता है उसके लिए भी ट्रू होगा। वैसे शायद नोट्स अगर तुम्हारे हों तो वहां पे वो भी अलग से मैंने शायद कर दिया होगा कि अगर बेसिस के लिए ट्रू है तो उसके लिए कैसे ट्रू है। सो अब हमारे मतलब मुझे लगता है तीसरे यूनिट का ज्यादा कुछ बचा नहीं, एक्सेप्ट वो आइसोमेट्रीज का, वो भी मुझे लगता है वो हम कल कर देंगे। ओके, ओके, लेट्स एंड दिस हम। और अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है, और अब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दो। हेलो एवरीबॉडी, यार कोई बोलता क्यों नहीं है? सर ये सर आपने जो ये सेकंड यूनिट के जो वीडियो लेक्चर्स जो यूट्यूब पे अपलोड किए हैं ना, हाँ सर हमें बस उतना ही पढ़ना है ना? हाँ, बस उतना ही पढ़ना है ना? उतना ही मतलब क्या, उसमें पूरा सेकंड यूनिट तो पूरा कवर है। फर्स्ट यूनिट का मैंने थोड़ा कुछ छोड़ा था, इवोल्यूट इनवोल्यूट, लेकिन मुझे लगा वो तुम कर सकते हो खुद। और थर्ड यूनिट का भी कुछ नहीं छूटा है, अब थोड़ा सा इसका एक लेक्चर और। वो उतना ही है ना सर, उतना ही है ना वो? हाँ, उतना ही है, मुझे नहीं लगता उससे एक्स्ट्रा कुछ है, ठीक है। क्योंकि सेकंड यूनिट का मुझे नहीं लगता कुछ रह गया। तो सो लेट्स एंड इट हियर, वी प्रिपेयर कुछ फॉर द एक्स्ट्रा एग्जाम। एक्सरसाइजेस हाँ कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस होती है ना सर, जैसे हमारे सीनियर्स ने कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस की होगी, हाँ हाँ हाँ, तो तो वो भी हमें करनी होगी। ऑब्वियसली है ना, वो तुम्हें सिर्फ याद तो नहीं रखना ना, जी सर। मतलब वो तो सिर्फ वो तो ऐसा ही हुआ ना कि इससे हमने कोई एक्सरसाइज निकाली। जैसे सपोज मैं कहता वो अम्बलिक की एक्सरसाइज, सपोज मैं वो नहीं दिखाता, लेकिन चूंकि तुम्हें पता है अम्बलिक की कंडीशन क्या है, आई एक्सपेक्ट कि अगर तुम्हें वो कंडीशन पता है तो उससे तुम वो डिराइव करो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि तुम्हें सिर्फ याद करना है, मतलब कुछ चीजें उससे डिड्यूस। जैसे मैं कहूंगा टेंजेंट प्लेन ऐसे, अब मैं कहूंगा इसका टेंजेंट प्लेन निकालो, ये जरूरी नहीं मैंने वो पर्टिकुलर एग्जाम्पल पढ़ाई हो कि इस सरफेस का टेंजेंट प्लेन निकालो, वो तो तुम खुद भी कर सकते हो ना, वही तो है ना सीखना। ये थोड़ी जी ना है सर। कि सिर्फ याद करना। इट्स नॉट मास्टर ऑफ मेमोरी, इट्स मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। सर फिर क्यों एग्जाम है? हाँ, एग्जाम यही जानने के लिए है ना तुमने कितना वो सीखा है। हाँ, मेमोरी उसका एक हिस्सा है। ओके, तो वो ये व्हाट्सएप वाला मुझे भेज देना। और अगर जो जी सर। तुम्हारे स्टूडेंट्स, जो अगर तुम्हारे नोट्स हैं उसमें एक्सरसाइजेस भी हैं तो वो भी तुम कर सकते हो, मुझे नहीं लगता इसमें कोई इतनी डिफिकल्ट एक्सरसाइज है जो तुम कर ही नहीं सकते, इट्स वेरी इजी। तो मैं चाहता हूँ तुम इसको और बेहतर समझो और मेहनत करो। गॉड ब्लेस यू ऑल। चलो हम इसको बंद करते हैं, वो स्टॉप शेयर। So let's end the meeting.